Hello, hello learners. This is Sunil Vishwakarma, and today I'm going to tell you about some advanced concept in MySQL. These advanced concept will help you somehow in many situations. For example, our first advanced topic is creating table from existing table. With this advanced topic, you can create a table from existing tables columns, and you can get its data too. Just put one line of syntax and you will get your particular columns from existing table along with its data. Okay, second concept is how to insert data from one table into another table. This is another advanced concept. How to insert data from one table into another table. And the third one is how to create a single table from multiple tables. It means you can use columns from multiple tables in order to create a single table. These are three important advanced concepts which we are going to discuss in this session. So let's start with first advanced topic, that is creating table from existing table, or say from existing field name. You can define the table and put data into without going through the usual data definition process. It means first you have to create table, then insert, record one by one. This is called a usual data definition process. This can be done by using select statement with create command. It means you have to use both the commands but in a single line. This concept is useful for making smaller tables out of large tables. For example, this is your table and I want to extract only record number, say registration number, student name, it's course and fee, or say registration number, student, sex and date of admission. Only these things: student registration number, student name, course and date of admission, or say registration number, student name, sex and date of admission. I want this one. It means 1, 2, 3, 4 and 5. I need 5 field name along with data. So as per syntax, create table name followed by table name, as is alias. Now bracket start, select. Because this can be done by using select statement with create command.
सबसे पहले ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये बनेगा हमेशा लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। पहले सिलेक्ट किए इसने, सिलेक्ट टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, यानी कि ये जो टेबल नेम है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसका फील्ड नेम आप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल नेम, ब्रैकेट क्लोज और डन। लेट्स डू दैट। MySQL show databases in order to get list of existing database. Now I'm going to use my IP, use IP. In order to open your existing database, use command. Now show tables. Show tables is used to check the list of tables, existing tables in a particular database. So my table is student, CLE select abstract from student student. See, these are my data, and I want to extract registration number, student name, sex and date of admission, all these things, 4. And I want to create a table called student registration. Create table STU registration. तो एज पर सिंटेक्स एज मैंने लिखा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये लगा दिया। इसके अंदर कौन सा कमांड चलाना है हमें? एज पर सिंटेक्स सिलेक्ट कमांड। सी टेबल नेम डॉट, जो आपको फील्ड नेम उठाने हैं, ये चीज तो किया हमने। देखिए क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम एज, इसके अंदर फिर पहले ये उठाना है, तो उससे पहले टेबल का नाम student student dot reg, and no, second is student student dot stu and AME name, then student रजिस्ट्रेशन उठा रहे हैं ना कि तो किस कोर्स में हुआ है ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कोर्स भी उठा लेते हैं, student student dot course कोर्स। देन नेक्स्ट मेल है कि फीमेल है, तो student student डॉट सेक्स और किस डेट में एडमिशन हुआ है। ठीक है, student student डॉट TOA। अब ये कहाँ से आया ये बता दो, फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, सिलेक्ट फ्रॉम हुआ था ना। तो लेट्स व्हाट हैपन, क्रिएट CREATE, यही है ना, TABLE टेबल नेम, उसका टेबल नेम। ओ हमने मंगा तो लिया लेकिन सिलेक्ट कमांड नहीं लिखा, SELECT सिलेक्ट, एंटर। सी आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे जो हमने बनाया है, स्टूडेंट रेग, यही तो बनाया हमने अभी along with data, SELE select abstract from STU REG reg। सी
STUDSELECT select abstract from STUDENT student। देखिए इस टेबल के जो आपने कॉलम चाहिए थे वो आपने यहाँ से ले लिए, ये ले लिया, नेम ले लिया, कोर्स ले लिया, फी को हमने छोड़ दिया था, फिर सेक्स ले लिया और डेट ऑफ एडमिशन हमने ले लिया along with data। This is a advanced concept। एक चीज और करके देखते हैं, ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है। हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 रख देते हैं, बन गया तो ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। लेट्स से ऐसे माइंड में आया कि अगर हो गया तो अच्छी बात है। स्टूडेंट 1 एज मैं यहाँ लगा देता हूँ LIMIT लिमिट 3। ये डन। इट मीन्स कि लिमिट आपकी ये तय करता है कि आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने शो करने हैं। तो यहाँ पे हमने पहले मतलब रीड किया कितना, केवल 3 रिकॉर्ड्स, अबव 3 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 अबव 3 रिकॉर्ड्स। लेट्स सेलेक्ट reg 1, सी अबव 3 रिकॉर्ड। सो लिमिट पुट करके आप कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए वो अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर डेटा अगर हमको इंसर्ट कराना हो तब, चलिए ये तो हमारे बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट हो गया है। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा करते रहेंगे, 1 by 1 ट्राई करते रहेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम उठाने जा रहे हैं, दैट इज आर अकॉर्डिंग टू टाइम 12 मिनट हो गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। ओके, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा हम किस तरह से ट्रांसफर करें। पहला वाला केस क्या था कि क्रिएशन के साथ ही डेटा ट्रांसफर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें वो टेबल पहले से बना हुआ हो और डेटा हम रीड करा लें कि हमें कितना डेटा चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शो TABLES टेबल्स, 3 टेबल बन चुके। SELE select abstract from STUDENT student, ये हो चुका है। मैं चाहता हूं कि केवल मुझे फीस के लिए चाहिए रिकॉर्ड, फी, स्टूडेंट फी नाम का एक टेबल बना देता हूं जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स और फी, केवल ये चारों आ जाए। और डेटा नहीं चाहिए मुझे अभी, डेटा मैं बाद में ट्रांसफर कराना चाहूंगा। ठीक है, पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से आप क्रिएट टेबल, CREATE क्रिएट TABLE टेबल, STU फी नाम का फी, तो बना देते हैं REGNO CHA care to, then STU name, varchar 45, then course COURSE course, that is BARCHAR varchar 20 का ले लिया हमने, then फी, और यहाँ रख दिया हमने इंट या फ्लोट, FLOT फ्लोट, ये रख दिया हमने। ये मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा इसके नेम चेंज कर दूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर के बदले मैं यहाँ पे लिख दूँ R नंबर लिख देता हूँ, देन STU नेम एक साथ लिख देता हूँ,
ठीक है, चलिए ये सब ये क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से जो मैं डेटा चाहूं वो आ जाए। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर देख लें, DESC STU फी, ये आ गया। रोल रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोर्स नेम है, ये है ये। अब इसका डेटा मुझे इसमें चाहिए। ये कितने हैं? ये हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 4, 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या। सी एक टेबल हमने बना लिया था, ठीक है। एज पर सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू STU, देन ब्रैकेट स्टार्ट। आपको कौन कौन कॉलम में वैल्यू चाहिए, फिर उसी ऑर्डर में आपको वहां से वैल्यू उठानी है। यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं लिखते हैं। जब हम किसी टेबल से अगर डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और टेबल में, तो यहाँ पे हम फिर वैल्यूज नहीं लिखते। इंसर्ट इनटू followed by table name, bracket start. You have to put the column name in which you want to transfer data from one table to another table, and after that you have to select column names from base table. Let's suppose I want to insert data from this table to this table. So let's start. In SERT, insert into STU fee, और किस किस में डेटा चाहिए? मुझे रोल नंबर में चाहिए, नेम में चाहिए, कोर्स को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोर्स आप बाद में भी अपडेट कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से भी लाइफ में कभी कभार इस तरह से भी आपको हैंडल करना पड़ जाता है। तो RNO इसमें चाहिए, STU NAME नेम में, और फी में चाहिए। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, SELE सिलेक्ट। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस रजिस्ट्रेशन में ये RNO आना चाहिए, STU में STU नेम में आना चाहिए, कोर्स में स्पेलिंग सेम है, ठीक है। ऑफ नहीं, कोर्स नहीं ले रहे हम, तो कोर्स हमने वहां पे लिखा भी नहीं है, सीधा फी ले रहे हैं, तो वहां पे हम फी लिख देंगे। देख सकते हैं आप सिंटैक्स, ये देखिए। सेलेक्ट, तो पहला है इसके लिए REGNO। स्टूडेंट नेम के लिए क्या लिखा है वहां पे, उसका हेडिंग क्या है स्टूडेंट नेम के लिए? STU नेम, और फी के लिए फी है STU नेम, कॉमा, फी के लिए फी है फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। स्टूडेंट से उठाया, सी ट्रांसफर हो गया डेटा। SELECT सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम STU फी। देखिए वहां पे आपका कोर्स कॉलम नल आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने वैल्यू भेजी नहीं है। देखिए, तो इस तरह से आप एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा पुट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेरी भी लगा सकते हैं, WHERE where REGNO in, let's say 1 3 5, इस नाम का तो टेबल
पहले से ही है। देखिए अब केवल 137 इस तरह का ये डेटा आ जाएगा। देखिए जो हमारी दूसरी क्वेरी चली उसमें क्या था कि आपका 1 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो यहाँ पे मैंने इन ऑपरेटर लगा दिया और एज अ लिस्ट पास करा दी है कि चेक करिए कि ये 1 है तो ट्रांसफर कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, 3 मिल रहा है तो ट्रांसफर कर दीजिए, 5 मिल रहा है तो ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी वहां से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। और इन में हमको लिस्ट पास करानी होती है कि आपको किस लिस्ट जो वैल्यूज आपने दे दी हैं डिपेंड ऑन कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप कुछ और भी लग सकते थे, लेकिन ये यूनिक इन नेचर होना चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड एडवांस कॉन्सेप्ट। थर्ड एडवांस कॉन्सेप्ट इज create a new table from 2 tables, joining 2 tables. जहां आप 2 टेबल को ज्वाइन करेंगे और तीसरा टेबल आप बनाएंगे। या तो आप पहले से बने हुए हो या सीधा थर्ड टेबल हम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले से 2 बने हुए, तीसरा थर्ड टेबल। जो आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट था हूबहू वही है, बस आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो चीज हमने बताई थी कि कहां कहां से क्या क्या डेटा चला रहा है वो चीज बताना है। क्रिएट टेबल STU3 नाम से एज सिलेक्ट टेबल 1 डॉट फील्ड नेम कॉमा टेबल 2 डॉट फील्ड नेम। आपको क्या क्या चाहिए, फ्रॉम किस किस टेबल से आ रहा है, वेयर, जहां पे इनके जो भी आईडीज हैं वो मैच कर जाएं, नहीं तो बहुत लंबे रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेट्स सपोज SEL show TABLS tables, SEL select abstract from STUD student, ये then SEL select abstract from STU REG reg, ये मैं तीसरा बनाना, एक्चुअली रिकॉर्ड तो सेम है। चलिए यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से ये उठा लेता हूँ, ये दोनों में रिकॉर्ड सेम है। सो ड्रॉप करना भी सीख लीजिए। ALTER अल्टर, TABLE टेबल, STUREG ड्रॉप, DOA। देख लेते हैं अब। देखिए टेबल ड्रॉप हो चुका है। तो मैं बनाना चाह रहा हूं, चलो यहां से ये कोर्स भी मैं हटा देता हूं, ड्रॉप कोर्स, COURS कोर्स हट गया, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इस टेबल में भी ये सब है, ऊपर वाले टेबल में भी ये पूरी यहाँ से मैं क्या क्या हटाऊं, 1 मिनट, तभी आप लोगों की समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो SEL select abstract from STUD student, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, सेक्स है। तो मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ, देन सेक्स हटा देता हूँ, नेम और सेक्स हटा देता हूँ।
student, drop student, drop कीवर्ड है और उसके बाद फील्ड का नाम जिससे आप हटाना चाहते हैं, दैट इज stu नेम कॉमा, ऊपर वाले में क्या क्या है, सेक्स तक ले रहे हैं तो यहाँ से मैं सेक्स हटा देता हूँ, sex, वन टाइम पे एक ही, ये हट गया मेरा। फिर यहाँ पे जाके मैं सेक्स कर देता हूँ, सेक्स किया sex, ये हट गया मेरा। तो अब मैं दोनों टेबल को देख लेता हूँ, SELE select abstract from student student, ये हो गया। SELE select abstract from STUREG, यही है ना कि फी था, चलो देख लेते हैं। हाँ, अब मैं जो तीसरा टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, देन कोर्स चाहिए और फी चाहिए, बाकी ये नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं, ये चाहिए क्योंकि दोनों में सेम है, नेम चाहिए, कोर्स चाहिए और फी चाहिए, बाकी ये दो चीज नहीं चाहिए। या हम ये कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स एंड फी, बस ये चीज। चलिए बना लेते हैं सीधा। तो CREAT क्रिएट टेबल फी नाम से, एज सेलेक्ट ये क्या क्या सेलेक्ट करना है मुझे। फर्स्ट टेबल का नाम, पहला टेबल का नाम है स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट डॉट reg, और दोनों में वैल्यू सेम है तो आप वन टाइम लिखिए। देन उसके बाद चाहिए मुझे नेम, नेम किसका पार्ट है, STUREG का पार्ट है, STUREG डॉट नेम, नेम नहीं है STU नेम है, STU नेम। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसके बाद चाहिए मुझे कोर्स, तो कोर्स स्टूडेंट का पार्ट है और फी भी स्टूडेंट का पार्ट है, तो STUDENT स्टूडेंट डॉट COURS कोर्स, देन फी वो भी स्टूडेंट का पार्ट है, STUDENT स्टूडेंट डॉट फी, और कहाँ से डेटा आ रहा है आपका, स्टूडेंट से और STUREG से, फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट STUREG वेयर। अब दोनों के मैच कराने पड़ेंगे, नहीं तो एक से ये 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड आ देंगे, 5 से ज़्यादा रिकॉर्ड आ देंगे आपके पास। वेयर STUDENT स्टूडेंट डॉट REG NO इक्वल टू STUREG। पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में इसको वेयर का यूज करेंगे, पहले इतना बना लेते हैं। स्टूडेंट डॉट रेग, ओहो रेग NO, देखिए कितने रिकॉर्ड आ गए, 25 रिकॉर्ड आ गए फी में। SELE select abstract from fee, this is called cardinal product। अब उसमें क्या है,
कि ये 5 इंटू 5 25, 1 2 3 4 और कितने रिकॉर्ड हैं 5, तो 5 इंटू 5 25, तो 25 आपके क्या बन गए, इंसर्ट हो गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैच वाले जाएं, तो मैच वाले ही जाएं, तो इसको अब मैं फी 1 कर दे रहा हूं, क्योंकि टेबल पहले से बनी हुई है इसलिए बनेगी नहीं, फी 1 और मैच करा दे रहा हूं, सॉरी, वेयर student dot reg no equal to reg, क्योंकि फ्रॉम के बाद दूसरा टेबल क्या है, स्टूडेंट रेग है, अंडरस्कोर reg डॉट reg no, जो उसका फील्ड नेम है वो दोनों बराबर होने चाहिए। सी आप आ गए 5 के 5 रिकॉर्ड फी 1, क्योंकि जो मैच कर जाएंगे वही इंसर्ट होंगे, अदरवाइज वो क्या करेगा, 5 इंटू 5 25 टाइम्स, वो मतलब 5 इंटू 5 25 टाइम्स वो रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से हमने ये देखे कि ये एडवांस कॉन्सेप्ट आपके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम जितनी बार देखेंगे उतने आपके लिए ये लाइफ टाइम के लिए एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आपके लाइफ टाइम यूज होगा। बाय स्टूडेंट्स।